Hello dear students, a very special welcome to all of you once again in the telecast series of classes. So for class 10th, today it will be the last lecture of carbon and its compounds. We have already finished 3 lectures in a row. So today it will be the last lecture in which I am going to conclude this particular unit by taking these 2 important topics. The one is some important carbon compounds and the second one is soaps and detergents. Let's start. Some important carbon compounds, there are 2 most important compounds given in your book. The first one is ethanol and the second one is ethanoic acid. We will discuss these 2 details separately. Ethanol, we already know that this belongs to the family of alcohols because ol is present at the last of the name. So its structure would be C2H5OH. This would be the molecular formula. And you can make it this way also, CH3CH2OH. Is it? We have already discussed the nomenclature in the previous lecture also. So ethanol beta, ये physical property पहले हम इसके थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद chemical property. Then after that, we are going towards the physical property of ethanoic acid and then its chemical properties, okay? In the physical property of ethanol, what we are going to do, first of all, we are trying to know what actually ethanol is. In very dilute form, we used to call it normal alcohol also because we already know this is the constituent of all the alcoholic drinks like beer, rum, etc. जो लोग शराब के नाम पे पीते हैं वो सारा ethanol उनमें present होता है बेटा. When it's in 100% concentrated, जब आपका इथेनॉल 100% concentrated होता है तब आप उसको absolute alcohol कहा जाता है बेटा, ठीक? Now, this is a say ethanol. It is a colorless liquid which is volatile in nature. You already know what volatile is? Yes. It's a colorless liquid which is volatile in nature. Its melting point is, do remember, minus 114 degrees Celsius. I'm writing it in Celsius. 114 degrees Celsius. This is the reason why why ethanol is used as an antifreeze in vehicles also. So, and its boiling point is almost equivalent to 78 degrees Celsius. Okay? And the most important thing is, see, it's a very good solvent. Ethanol is a very good solvent. It has been extensively used in making a lot of medicines, tincture of iodines. और आपके घरों में जो आप कफ सिरप लेते हैं, जब आपको कफ होता है बेटा, उन सारे सिरप्स में इथेनॉल प्रेजेंट होता है. इसीलिए जब भी डॉक्टर आपको कफ सिरप प्रिस्क्राइब करता है, तो what doctor used to say, please after taking this particular medicine don't drive for few minutes या फिर few hours. कुछ घंटों के लिए आपको गाड़ी नहीं चलाना है क्योंकि इसमें इथेनॉल है, तो ये आपको डिजीनेस पैदा करता है बेटा, या आपको थोड़ा ड्रंकनेस आ जाता है, थोड़ा सा आपको नींद जैसा आ जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा. अब सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल? व्हाट इज द डिफरेंस? स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये फर्क है, CH3CH2OH. दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज मिथेनॉल. इज इट? Now, what is the difference? This ethanol, they used to include this in alcoholic drinks also, beverages also, but methanol is very much dangerous. अगर आप कहोगे सर मेटाबॉलिज्म के लिहाज से इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ethanol, both of them used to get metabolized in our liver, but methanol is so much dangerous that it can lead to coagulation of protoplasm in your cell. बायोलॉजी वालों को पता होगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. उसका कोगुलेशन कर देता है बेटा, इंस्टेंट डेथ हो जाता है उस इंसान का जिसमें जो मिथेनॉल पीते हैं या मिथेनॉल लेते हैं. इथेनॉल नॉर्मली डाइल्यूटेड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, शराब वगैरह इथेनॉल के फॉर्म में ही होता है बेटा, डाइल्यूटेड फॉर्म में. बट व्हाट हैपन्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इसको डीनेचर करके भेजा जाता है बेटा. डीनेचर मतलब डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल होता है, वो इथेनॉल होता है जिसमें छोटे छोटे अमाउंट में कॉपर, पिरिडीन या मिथेनॉल ऐड किया जाता है. उससे क्या होता है, अगर वो वाला ड्रिंक कोई पीता है तो उसका डेथ हो सकता है, उसका सेहत खराब हो सकता है. इसीलिए लोगों को वार्निंग दिया जाता है. अब कंपनी में बहुत सारे अल्कोहल्स प्रेजेंट है सर, तो क्या होता है,
वो कोशिश करता है उसको पीने की, अब बेचारा वो काम करने वाला है, उसको तो शराब से मतलब है, वो पीने लगेंगे, तो उसमें मिथेनॉल ऐड किया जाता है, कॉपर ऐड किया जाता है और पिरिडीन ऐड किया जाता है। जब भी किसी प्योर अल्कोहल में वो सारे चीज ऐड करके उसको डीनेचर किया जाता है या पीने के लायक नहीं रखा जाता है, उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। समटाइम्स दिस यूज्ड टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके सर, this was all the physical property of this ethanol. Now we are going on the chemical properties of ethanol. Okay, इसको कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल कहा जाता है बेटा, ये याद रखिएगा आप। कॉमन नेम है इसका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल, सॉरी, कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल। ये कभी कभी पूछा जाता है, सो यू कैन रिमेंबर दिस वे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, all those properties which gives you the physical identity of that particular compound or that particular substance, like कि उसका appearance क्या है, उसका state क्या है, solid है, liquid है, gas है, क्या melting point है, क्या boiling point है, etc. उन सारे properties को physical properties कहा जाता है। chemical properties में वो सारे properties जो आपको ये idea देता है कि वो पर्टिकुलर सबस्टांस किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं, और अगर रिएक्ट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। लेट्स सी, इथेनॉल किन किन सबस्टांस के साथ रिएक्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या बनाते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, वो हम देखने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, सॉरी दिस वाज I'm going to erase it and write it again. When ethanol reacts with sodium metal, what does it gives? It gives 2C2H5ONA plus H2. See, this is ethanol? Yes sir. And this is sodium metal. When ethanol reacts with sodium metal, it gives us sodium ethoxide plus hydrogen. This is also a test to confirm whether this is an ethanol or not. अगर आपको पता करना है कि ये इथेनॉल है कि नहीं है, तब आप ये वाला टेस्ट करके देख सकते हो। सोडियम ऐड करके आप देख लीजिएगा, अगर उसमें पॉपिंग साउंड आता है, आपको पता है हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड, तो आपको कंफर्म हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन भी फॉर्म हो रहा है, देन दिस इज ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल। दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। ये आपको एक टेस्ट भी आप बता सकते हैं जिससे हमें कंफर्म होगा कि वो पर्टिकुलर लिक्विड इथेनॉल है कि नहीं है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, how it's going to react with sodium, we have already seen that. Now let's see C2H5OH, this is ethanol. When we let it react with concentrated H2SO4, we used to get an unsaturated compound. This is what we used to get. This is ethene and this is water. So whenever in a reaction water is getting eliminated, that particular reaction is known as dehydration. आप सभी को पता है, जब आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाता है तो डॉक्टर आपको ORS वगैरह देते हैं, कहते हैं बेटा आपके बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, वाटर की कमी हो गया है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें भी वैसा ही कुछ हो रहा है। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे इथेनॉल में, तो क्या हो रहा है सर, आपका इथीन बन रहा है। यू ऑलरेडी नो दीज नेम्स, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन एंड अगेन टू सेव योर टाइम। तो उसके बाद क्या हो रहा है, इथीन फॉर्म हो रहा है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। सो इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो। और दिस इज कंसनट्रेटेड H2SO4, दिस इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि द रिएजेंट which helps in dehydration of water or which helps in elimination of water, उस reagent को हम क्या बोलते हैं, dehydrating agent बोलते हैं बेटा। It's all about ethanol, physical and chemical properties। इतना आपके सिलेबस में दिया हुआ है बेटा, तो we are not going to go too much forward to save your time. So now let's move to ethanoic acid. Acid, ethanoic acid। कैसे लिखता था हम ethanoic acid? 2 कार्बन होना चाहिए सर। अब एसिड है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH होना चाहिए, इज इट? अब इसका वैलेंसी पूरा कर लीजिए, CH3COOH। इसे हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। सर इसका कोई कॉमन नेम है? ऑब्वियसली है सर, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम।
आपके एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, देन आपको याद रखना है एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टी. अब इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जाएंगे बेटा. जब भी विनेगर आपने सुना होगा बेटा, सिरका जिसको हम बोलते हैं, जो हम अचार वगैरह में डालते हैं पिकल्स में फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस. सो व्हाट इज दैट? डायरेक्ट concentrated acetic acid is not called vinegar beta. When you add 5 to 8% of acetic acid in water is called vinegar. Vinegar, sirka beta, preservative. This is a very good preservative which we use in pickles. तो ये एसिड है, तो उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने नहीं देते हैं, इसीलिए हम इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं. बट concentrated acetic acid is not vinegar. This is only 5 to 8% of acetic acid in water. This is another physical property. Now, what is its melting point? Its melting point is 16 degrees Celsius and its boiling point is 118 degree Celsius. आपको पता है इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, ठीक, ये बहुत ज़्यादा जल्दी विंटर्स में इसको फ्रीज हो जाता है बेटा, इसीलिए इसका नाम कभी कभी ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है. ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीन्स इन ग्लेशियर फॉर्म, इन एन आइस फॉर्म, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो. ओके, नाउ दिस इज एन एसिड. आपको पता है सर, जब एसिड है तो उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड करके. तो दिस इज ऑब्वियसली अ वीक एसिड. ठीक है सर, ये याद रखिएगा. सो दिस ऑल वर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसको हमने क्या बोला, एसिटिक एसिड भी बोला. ठीक, नाउ गोइंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. Chemical properties of ethanoic acid. Okay sir. Now chemical property आपको पता है ये कैसे रिएक्ट होगा, किसके साथ रिएक्ट करेंगे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है सर, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये याद रखिएगा आप, बहुत ज्यादा एस्टरिफिकेशन, इसलिए क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है सर, जब मैं यहाँ पे एक एसिड यूज करूंगा, इथेनोइक एसिड, उसमें मैं इथेनॉल ऐड करूंगा बेटा, C2H5OH. उसमें एसिड के प्रेजेंस में जब मैं ये रिएक्शन करूंगा तब क्या फॉर्म होगा, हमेशा एस्टर फॉर्म होगा. कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ऐसे. दिस इज एन एस्टर. कैसे एस्टर हुआ सर, देख लीजिए. यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H2O यहां पे निकल गया वाटर. अब बचा क्या सर, अब बचा CH3CO, बचा CH3CO. अब यहां से टूटा है तो यही से जुड़ेंगे, O यहां पे आ गया, फिर C2H5 यहां पे बचा. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर. क्या हो रहा है सर एस्टर में, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बेटा. जब भी लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको एक फ्रूटी स्मेल, एक प्लेजेंट स्मेल आने लगेगा, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इज फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स भी इनको बोला जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एस्टर. जिसमें क्या हुआ, आपने एसिड इथेनोइक एसिड का, जब आपने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एक एस्टर बना विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, आप इसे मान सकते हो सर. दिस इज एन एस्टर. दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसमें क्या हो रहा है सर, ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका केमिकल, उसको सेपोनिफिकेशन बोलते हैं बेटा, सेपोनिफिकेशन. इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा बेटा आपका, फिर से जब आप एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये आपका एस्टर है. जब आप इसमें कोई बेस सेट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तब क्या बनता है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस C2H5OH. इज इट? ऐसे बनेगा ना सर, CH3 COONA यहाँ पे आ गया, तो OH इसके साथ जुड़ेगा, C2H5OH. दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट. सॉरी, इसमें दो बार O होगा ना, C2H5OH. हाँ, यहाँ पे O है, हाँ ठीक है सर, O है इधर. तो दिस इज सोडियम इथेनोएट एंड दिस इज इथाइल अल्कोहल. आपको दिख रहा होगा इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं सर. दिस इज अनदर केमिकल प्रॉपर्टी. अब ये जो है ना सर, ये साल्ट आपका सोडियम साल्ट है, यही साबुन बनाने में आपको यूज होता है, सोप बनाने में, इसीलिए इसको हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एटसेट्रा. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक,
अब और एक चीज है सर, एसिड है, जब भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आपको हमेशा पता होगा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट ऑलवेज फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। वही यहाँ पे भी होगा, उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। देखो ये एक बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एक तो साल्ट बनेगा, ठीक है सर, CH3COOH प्लस NaOH। देखो यहाँ से वाटर निकलेगा ऐसे, साल्ट एंड वाटर ऐसे बनेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, CH3C+OH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं बेटा, फिर से वही बनेगा CH3C+OONA प्लस सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर तो फिर से इसमें साथ में बनेगा। दिस वाज ऑल द दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। नाउ लेट्स मूव टू सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो सोप्स क्या होता है सर, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है सर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट। अब इसमें से क्या होता है, आपका हाइड्रोजन हट जाता है, आपका हाइड्रोजन हटेगा ऐसे, देख लीजिएगा, हाइड्रोजन जब यहां हट के यहां पे सोडियम आ जाएगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट आपको मिलेगा ना सर, उसको आप सोप कहते हैं। सर फिर डिटर्जेंट में क्या प्रॉब्लम है, तो डिटर्जेंट में ऐसा है, सोडियम और पोटेशियम आपको नहीं मिलेगा, इसमें अमोनियम साल्ट मिलेगा या सल्फोनेट साल्ट आपको मिलेंगे सर। यहाँ पे SO3 नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव मिलेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सोप, तो आप ऐसे बोल दीजिएगा कि दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर। सोप और डिटर्जेंट में मैं जल्दी जल्दी आपको 3 डिफरेंस बता दूं। पहले तो ये कि इसमें सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, उसमें अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स मिलेंगे। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। याद रखिएगा कि जो आपका डिटर्जेंट है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आपको उसको एहतियात से यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। उसके बाद तीसरा वाला है सर, आपको जो आपका सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, और जो आपका डिटर्जेंट है दैट यूज्ड टू वर्क बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इज इट ओके? नाउ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम देखेंगे। ये आपका सोप मॉलिक्यूल है बेटा, ये मैंने आपको पहले बना के दे दिया, ONA, ओके, दिस इज C। नाउ इसको 2 पार्ट में वो डिवाइड करते हैं बेटा, दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। वो इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। ये जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, उसको वो बोलते हैं ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाँ जी। एंड दिस वन COONA, इसको वो हाइड्रोफिलिक पार्ट कहेंगे बेटा, हाइड्रोफिलिक। साबुन जो है आपका, डिटर्जेंट है आपका, उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो लॉन्ग चेन है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो आपका आयनिक पार्ट है। इसको ऐसे भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये गोल वाला ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये जो ऐसे टेल जैसा दिख रहा है वो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इन दोनों का क्या फंक्शन है सर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोप कैसे साफ करते हैं आपके ग्रीस को, डर्ट को, ऑयल को, या जो भी आपके हाथ में गंदगी पड़ा हुआ है उसको वो कैसे साफ करते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स, फोबिया मीन्स डर, आप सभी को पता होगा। जब भी हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स आप मान सकते हो कि ये वाटर से दूर रहना चाहेंगे हमेशा, वाटर रिपेलिंग आप बोल सकते हो। Philic means always loving, hydrophilic means water loving, it always used to remain in association with water. Let's see how soap acts on a particular dust, और कैसे साफ करते हैं उस पर हम देखेंगे। सपोज ये आपका एक डस्ट है, ऑयल है या ग्रीस है जो आपके कपड़ों में या हाथों में लगते हैं। अब आपका सोप कैसे, ये आपका सोप है सर, मैंने आपको ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है सर। इसमें Na आप देख सकते हो ऐसे, या अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो इट्स ऑल ओके। जो अंदर वाला पार्ट है ग्रीस की तरफ, उसमें कौन गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट गया, ठीक है सर। हाइड्रोफोबिक पार्ट हमेशा डस्ट और ग्रीस की तरफ चला जाएगा, और जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयनिक पार्ट, वो हमेशा आपके पानी की तरफ रहेगा, पानी के सरफेस की तरफ। आप इसको यहाँ पे ऐसे पानी का एक बाल्टी भी ऐसे बना सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे,
अब यहाँ पे जो ग्रीस है ना, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब इस प्रोसेस को मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। जो यहाँ एक प्रोसेस बना हुआ है इसको मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। उसी की वजह से आपको उधर झाग वगैरह दिखने लगते हैं, फोम वगैरह दिखने लगते हैं। तो ये क्या करता है, अंदर से जो ऑयल है या डर्ट है या जो गंदगी है उसको वो निकाल लेते हैं बेटा बाहर। क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो उसके साथ वाटर में मिला के उसको बाहर आराम से पानी में मिला लेते हैं। फिर आपका कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। कोई आपसे पूछेगा कैसे साफ करते हैं साबुन, ऐसे देख लीजिएगा। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डस्ट और ऑयल के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर निकाल लेता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो उस डस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। दैट मीन्स कि सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या है, कैसे सोप इंटरेक्ट करते हैं, उसका कौन सा पार्ट पानी में रहता है और कौन सा पार्ट डर्ट और ग्रीस में चला जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ओके, तो ऐसे आपका सोप का मॉलिक्यूल कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं बेटा। C17H35COONA, ठीक है सर। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बहुत ज्यादा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 तक आपको जाना है। मैं यहाँ बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, तो चलो लेट्स मेक इट लिटिल बिट क्लियर। अगर आपको पूरा इसका सही स्ट्रक्चर चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है सर, 17। फिर है आपका COONA। दिस इज अ सोप। इसका क्या नाम है सर? इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट। अगर कोई आपको बोलेगा सर मुझे एक साबुन का नाम लिख लीजिए, उसका केमिकल नाम चाहिए मुझे, तो आपको लक्स लाइफबॉय वगैरह नहीं बोलना है। यू हैव टू नेम दिस सोडियम स्टीरेट इज अ सोप। जिसमें जो सोडियम स्टीरेट है ना सर, इसमें 2 पार्ट है आपका, फिर से देख लीजिए। ये जो C17H35 वाला पार्ट है, this is called hydrophobic part, which always interacts with grease, oil and dirt particles. And this one COONA, this is the ionic part, है ना सर? आयनिक, O पे नेगेटिव चार्ज है, N पे पॉजिटिव चार्ज है। This ionic part always interacts with water. This is called hydrophilic and this is called hydrophobic part. This is an example of a soap, sodium stearate, जिसका केमिकल फार्मूला है C17H35COONA। और अगर आपको किसी डिटर्जेंट का भी नाम चाहिए सर, आपने तो किसी डिटर्जेंट का नाम नहीं बोला, तो आप ये साथ में लिख लीजिएगा, सोडियम लोराइड सल्फेट। दिस इज अ डिटर्जेंट। मैंने पहले बोला इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जो आपका सोप है वो सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, और जो आपका डिटर्जेंट है बेटा वो आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है। कोई आपसे पूछेगा सर फिर सोप जो है वो आपका सॉफ्ट वाटर में ही क्यों काम करता है, हार्ड वाटर में क्यों नहीं करता? तो जो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, वो इंटरेक्ट करता है साबुन के साथ और वहाँ पे एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बना देता है जो सॉल्यूबल नहीं होता। उसकी वजह से एक चीज़ बनता है जिसको हम स्कम बोलते हैं, वो वहाँ लेदर अच्छा नहीं दे पाता। और जो आपका डिटर्जेंट है दोनों में आराम से लेदर वगैरह देता है, उसमें काम करता है। और अगर डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेसिव यूसेज नहीं करना है डिटर्जेंट का, लेकिन सोप इज़ वेरी इजी। आप उस बायोडिग्रेडेबल है, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। So this was all about soap and detergents and the cleansing action of soap. So I hope you all have understood well about the physical and chemical properties of ethanol and ethanoic acid. But still if there is any confusion, you can every time and anywhere आप इस नंबर पे 8491957847 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। So this was all about carbon and its compound, but still if there is any confusion, you can revert back to us with your questions and queries. Thank you so much for today's class. Have a nice day.